مجھے آئی ڈی بنانی نہیں آتی، آپ کروا دو گی نا بات میری؟ جی میرے شہزادے، میں آپ کے چاچو اور پری سے بات کروا دوں گی۔ منال نے نائل کو ناشتہ کروا کے اسکول بھیجا۔ فجر ہوا، ریحان کی آنکھ کھلی تو گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اذان ہو چکی تھی۔ پریا ریحان کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ ریحان نے پیار سے اس کی طرف سوتے ہوئے وہ کسی بچے جیسی معصومیت لی ہوئی تھی۔ ریحان نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہاتھ سے چھونے لگا۔ پھر اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر اپنے رب سے شکر ادا کرنے کے لیے صحیح طرح سے ہوا۔ خوشی سے اس کے چہرے پر اپنی محبتی تکمیل پر اسے لگا شاید پری نے اسے معاف کر دیا ہے جب ہی اس رشتے کو قبول کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک نظر پریا پر ڈال کر وہ اپنے ٹریک سوٹ پہن کر جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ واپس آ کر پریا کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر اسے جگانے اوپر آ گیا۔ ہمیشہ کی طرح ریحان نے پریا کو جگانے کے لیے پریا کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ پریا جانو اٹھ جاؤ۔ ریحان کی آواز پر پریا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ نیلی آنکھوں میں سرخ ڈوریاں دیکھ کر ریحان نے بےہود ہو کر اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیے۔ ریحان کے ہر انداز میں محبت تھی مگر پریا اس محبت کو جواب محبت سے دے نہیں پا رہی تھی۔ بغیر کسی تاثر کے وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ ناشتے کے وقت بھی ریحان نے ہر طرح سے اس پر اپنی محبت نچھاور کی پر پری اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا جو وہ بغیر کسی چوچ کے کھا رہی تھی۔ وہ تو اس بات پہ حیران تھی کہ ریحان سکندر شہر جو اٹھ کے پانی نہیں پیتا تھا اس نے پری کے لیے خود ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد ریحان نے پری کے ساتھ ایبرٹ اور ایما سے ملنے کا پروگرام بنایا جس پر پریا نے حامی بھر لی۔ ایبرٹ اور ایما پریا اور ریحان سے بہت خوش دلی سے ملے۔ پریا بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ جب سے وہ لندن آئی تھی پریا پہلی بار ہنسی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد ریحان نے پریا کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ایما پریا کو لیے اوپر کمرے میں آ گئی جبکہ ریحان اور ایبرٹ گڑگڑ کے متعلق بحث و مباحث میں مصروف تھے۔ تمہیں پتہ ہے پریا، ریحان ہم سے اتنی بار مل چکا ہے کہ اب لگتا ہی نہیں کہ وہ کوئی غیر ہے۔ وہ ایبرٹ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ دونوں ہم عمر ہوں۔ ایما ہنستے ہوئے پریا کو بتا رہی تھی، ہمیں ریحان نے بعد میں بتایا تھا کہ تم دونوں شادی شدہ نہیں تھے اس وقت مگر وہ تمہیں چاہتا تھا کہ اس نے بتایا تھا ہمیں۔ جب تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی وہ پاکستان جانے سے پہلے بھی ہم سے مل کر گیا تھا اور ہم سے دعا کرنے کا کہا تھا کہ اسے اس کی محبت مل جائے۔ تم دونوں کا ساتھ دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ریحان بہت اچھا انسان ہے۔ ایبرٹ کو اس کی شوق پر کسی معاملے میں کافی نقصان ہوا تھا اور ریحان نے اس کی معلومات میں لائے بغیر ہی اس کی اتنی مدد کی۔ یہ بات ہمیں اس نے جس کے ذریعے مدد کی تھی اس سے لاکھوں پوچھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا۔ ہم کو اتنی حیرت ہوئی کہ جان کے کیسے ایک انسان ایک بار کی ہوئی مدد کا اتنا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ ایما ریحان کی بات کرتے ہوئے پریا کے چہرے پر کچھ کھوج رہی تھی۔ اس نے پریا اور ریحان کے بیچ تھوڑی دوری محسوس کی تھی کیونکہ وہ لوگ ان کے گھر میں کافی فاصلے پر بیٹھے تھے اور ایک بار بھی پریا نے ریحان کو مخاطب نہیں کیا تھا جبکہ ریحان بات بات پر پریا کو مخاطب کر رہا تھا۔ ایما کی نظر خود پر مرکوز دیکھ کر پریا مسکرا دی، کیا ہوا، اسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنی محبت کرنے والا شوہر ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دکھ رہی جو لڑکیوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ پریا اس وقت بہت کچھ بولنا چاہتی تھی کہ ریحان جیسے بندے نے بھلا ہی ہر کسی کے ساتھ اچھا کیا ہو مگر اس کے ساتھ تو ہمیشہ برا ہی کیا، ہمیشہ تکلیف ہی پہنچائی اسے، کبھی اپنے الفاظ سے تو کبھی اپنے اعمال سے۔ اب اس کی محبت کے آگے وہ اتنی آسانی سے سب کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ ایما اس کی بولنے کا انتظار کر رہی تھی جو کہ خالی نگاہوں سے صرف ایما کو دیکھ رہی تھی۔ ایما کے بلانے پر پریا اپنے خیالوں میں باری، ایسا کچھ نہیں، ابھی مجھے تھوڑا وقت لگ رہا ہے اس رشتے کو ایکسپٹ کرنے میں، بس اور کچھ نہیں۔ ایما کو ٹال کر پریا نیچے ریحان کے پاس چلی گئی اور دن ڈھلنے سے پہلے ہی وہ لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی جیسے دونوں کا وائی فائی کنیکٹڈ ہوا، منال نے آئی ڈی سے کتنی ہی ویڈیوز کال کا میسج آئے تھے۔ جانم لگتا ہے نائل آپ کے بغیر وہاں بھابھی کو بہت تنگ کر رہا ہے۔ ریحان نے پیار سے پریا کو اپنے پاس بٹھا کر اپنے لیپ ٹاپ سے منال کو کال کرنے لگا مگر لیپ ٹاپ میں چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے ریحان اسٹڈی سے اپنا آئی پیڈ لے آیا جو نائل کے استعمال میں تھا۔ اس سے ریحان نے منال کو کال کی اور پھر پریا اور ریحان نے نائل سے خوب باتیں کی۔ پریا کو لندن آئے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ اب وہ ریحان سے ہلکی پھلکی بات کر لیا کرتی تھی۔ یہ سب ریحان کی توجہ اور محبت کی وجہ سے ہوا تھا ورنہ وہ تو شروع میں ہی بس ریحان کی باتوں کو مختصر ہی جواب دیتی تھی مگر ریحان نے اسے کبھی نہیں ٹوکا۔ ان دنوں ریحان نے اپنی پوری توجہ کا مرکز پریا کو ہی بنایا ہوا تھا۔ اسے علی کے الفاظ کبھی نہیں بھولے تھے کہ پریا اس کی محبت کو جواب محبت سے نہ دے تو دل چھوٹا مت کرنا، ایسا دن بھی آئے گا جب وہ خود اپنی محبت کا اظہار کرے گی لیکن تب تک تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ پریا نے 1 ہفتے کے بعد ہی واپس پاکستان جانے کی ضد کی جسے ریحان نے ٹال ٹال کر اتنے دن گزار دیے تھے۔ احمد صاحب سکندر ہاؤس کے سبھی افراد سے وہ دونوں روز ہی بات کرتے تھے۔ سب لوگ پریا کو ریحان کے ساتھ تھوڑا نارمل ہوتا دیکھ کر آج گرمی کھیلی تھی۔ ریحان اپنی یونیورسٹی گیا تھا کسی کام کے لیے۔ ریحان کے رزلٹ آتے ہی انہیں پاکستان واپس جانا تھا۔ اب پریا ریحان کے ساتھ تھوڑی نارمل ہو گئی تھی۔
वजह सिर्फ इसकी और रेहान के बीच रिश्ते का तकाजा था, जिसमें अव्वल दर्जा शौहर का एहतराम होता था। वह बस अपनी जिंदगी जी रही थी। रेहान से इंतकाम का ख्याल कहीं दूर सो चुका था, मगर एक तकलीफ थी जिसे वह समझने की वे समझ नहीं पा रही थी। कुछ ना समझ आने पर वह रेहान का आईपैड लेकर बैठ की नाइल से बात करने के लिए, मगर इसकी कॉल की तो किसी ने रिसीव नहीं की। प्रिया ने 2-3 बार कोशिश की, मगर किसी ने भी कॉल न उठाने की वजह से प्रिया ने कॉल मिलानी बंद कर दी। मिनाल की मसरूफियात का सोच के परी ने मिनाल को मैसेज करने का सोचा कि जब वो फ्री हो तो कॉल कर लेना। मैसेज करके भी नज़र पर आने मैसेजेस वर्गी रेहान ने आए इसी आईपैड से ही तो वो झूठी मोहब्बत के मैसेजेस किए थे अपने के मोबाइल पर, ताकि शादी वाले दिन सबको यकीन आ जाएगा वाकई प्रिया और रेहान को ये गहरा ताल्लुक हो। मैसेज पढ़ते हुए प्रिया के चेहरे पर एक तरफ मुस्कान, फिर वो जैसे ही आईपैड रखने लगी इसकी नज़र एक और मैसेज पे गई। वो कोई लड़की थी डीपी में, मगर प्रिया इसे नहीं जानती थी। इतने मैसेज देखकर प्रिया हैरान रह गई। इसने तो कभी इस औरत पर बात नहीं की। फिर जैसे जैसे वो शुरू से पढ़ती गई वैसे वैसे इसके तासुरात बदलते गए। हैरत की जगह पहले गुस्से ने ली और फिर नदामत ने। मैसेज पढ़ते हुए कब प्रिया की आंखों में जारी हुआ इसे एहसास ही न हुआ। आईपैड कब इसके हाथों से छूटकर जमीन पर पहुंच गिर गया इससे एहसास ही न हुआ और अपना सर हाथों में गिराए बैठी रही। किसी से किए वादे की वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, मगर मैंने यकीन करो मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। कहीं दूर से इसके कानों में अल्फाज गूंजे, मैंने जो किया इसी में तुम्हारी भलाई थी। प्रिया की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ प्रिया, रेहान हमेशा करता रहूंगा। यह अल्फाज है जो रेहान हमेशा प्रिया से कहता था। 5 माह पहले प्रिया को पाकिस्तान के अभी कुछ ही दिन हुए थे, मगर रेहान को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सदियां बीत चुकी हैं। प्रिया का हंसना और नाइल के साथ खेलना रेहान को रह रह के याद आ रहा था। अब वो रेहान से बहुत खुशी से बात करती थी, इसे अपना दोस्त और हेरवा मानती थी। जब से वो लोग एवरेट और मियाँ का घर से आए थे, प्रिया का रवैया रेहान के साथ बदल गया था। रेहान को ये पता चल चुका था कि प्रिया को किडनैप करने की साजिश शलीजे ने की थी। ये सब इसे हॉस्पिटल में पड़े जैक के बताए थे, जिसे रेहान ने इतना मारा था कि इसका हाथ भी तोड़ दिया था और जल्दी न फिरने वाले जख्म भी दिए थे। अलीज़ा को बहुत अच्छी तरह रेहान की ने वार्न की और कुछ जैक के हाल देखकर भी अलीज़ा को अंदाजा हो गया था कि रेहान की शिद्दतों का जो सिर्फ प्रिया के लिए ही थी। इस वक्त अलीज़ा ने समझदारी से काम लेकर रेहान से माफ़ी मांगी और शहर छोड़कर ही चली गई। प्रिया के जो मौजूदगी में रेहान बहुत खुश था, मगर अब इसके चले जाने के बाद इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रह रह कर इसे वो दिन याद आता था, अगर इस दिन वो प्रिया को लेकर जाते हुए न दिखता तो क्या होता। इससे आगे रेहान कभी सोचता नहीं जाता था और इसी वजह से रेहान को ये एहसास हुआ कि प्रिया इसके लिए कितनी अहम हो गई थी। रेहान जल्द अज जल्द अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता था। इसकी पढ़ाई का ये लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर ही था, जिस जल्द ही पढ़ाई मुकम्मल करके अली के साथ बिजनेस संभालता। ऐसा वो चाहता नहीं था, इसे पाकिस्तान कभी नहीं जाना था, मगर अब महबूब का देश इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन देश लगा। अब रेहान हमेशा पाकिस्तान में रहना चाहता था अपनी परी के साथ। जैसे ही इसने ऑफिस जाना शुरू किया, वो अपनी मॉम और अली से परिया के मुतालिक बात करेगा। इन्हें बताएगा कि वो इससे मोहब्बत करते हैं या फिर इससे बहुत ज़्यादा। रेहान अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर खुद ही मुस्कुरा रहा था। आज सुबह ही वो अली, नाल, महताब बेगम को एयरपोर्ट छोड़ के आया था और प्रिया के जाने के 1 हफ्ते बाद गए थे। अभी रेहान के एग्जाम थे तो वो साथ नहीं गया था। स्टडी में वो अपनी किताबें खोले नजर इस किताब पर ये पढ़ा था जो प्रिया ने न जाने कितनी बार यहाँ लेकर बैठी थी, मगर थोड़ी ही पढ़ पाती थी। नाइल जो इसे वहां से ले जाता था। रेहान अपनी सोचों में था जब मैसेज की बीप इसे सुनाई दी। टेबल पर आईपैड पड़ा था। देखकर रेहान ने इसे उठा कर देखा तो रेहान का आईपैड था, मगर हमेशा नाइल के पास ही होता था। रेहान ने मैसेज खोला तो देखा किसी पाकीज़ा दिलावर का मैसेज था। रेहान ने पहले ये देखा कि वो आईडी प्रिया की थी, जिससे नाइल हमेशा रेहान को कॉल करता था। प्रिया अहमद, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैसेज पढ़कर कुछ सोचते हुए रेहान ने रिप्लाई किया, क्या जी। आगे से फिर एक और मैसेज आया, सुना है तुम्हारी शादी दिलावर खान से हो रही है। प्रिया की शादी को सुनते ही रेहान की तो मानो पैरों के नीचे से जमीन सरकती महसूस हुई। आप कौन? रेहान ने फिर मैसेज किया, मैं इसी दिलावर की खान की बीवी बात कर रही हूँ। रेहान ने तो मानो होश ही उड़ गए ये मैसेज पढ़कर। आपकी बात पर कैसे यकीन किया जाए। अब की बार रेहान कुछ संभलते हुए एक और मैसेज किया, दिल में तो बस एक ही बात रह गई थी कि प्रिया की शादी हो रही है। इस पकीज़ा नाम की औरत ने प्रिया को ढेरों तस्वीरें भेजी, जिसमें एक खूबसूरत आदमी एक प्यारी सी लड़की के साथ था और इसके हाथ में एक 1.5 साल का बच्चा भी था। अब के रेहान ने इस औरत से खुल के बात की, मैं प्रिया नहीं हूँ, मगर मैं वो हूँ जो प्रिया को अपना सब कुछ समझता हूँ। आप प्लीज़ मुझे सब कुछ बताएं ताकि ये सब किया है और प्रिया की शादी आपके हस्बैंड से क्यों हो रही है। रेहान चाहता तो कॉल कर सकता है, मगर मैसेजेस पर बात करना सिर्फ प्रिया और
اس کے بابا کو ثبوت جو دکھانے تھے۔ تم کون ہو؟ میں نہیں جانتی۔ پریا کون ہے یہ کچھ پتہ ہے؟ دلاور نے مجھے بتایا تھا کہ پریا نامی لڑکی اس کی بچپن کی منگیتر ہے اور اس کی امی کی پسند بھی۔ دلاور نے ہماری شادی اور بیٹی کی بات اب تک اپنی امی کو نہیں بتائی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اور بیٹی کی پیدائش کے بعد دلاور کی محبت میں کمی آنے لگی ہے۔ اس نے بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے کافی کوشش کی، مگر سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہا۔ وہ ایک بہت اچھی جاب کرتا تھا، ایک خوش اخلاق انسان تھا، مگر اب اس نے نہ جانے دولت کی خواہش جاگی اور اس خواہش کے آگے وہ کچھ نہیں دیکھ رہا۔ تھوڑی کو چھوڑو، وہ زیادہ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس نے تھوڑی بھی گنوا دیا، اور اب جب اس کے پاس بالکل پیسہ نہیں تو ایک بار پھر سے چھوٹی سی جاب کر رہا تھا۔ وہ پہلے جیسا ہونے لگا تھا کہ تبھی دلاور کی امی نے اس سے پریا سے شادی کا کہا۔ اس نے منع تو کیا بہانہ بنا کے کہ مگر میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دن بعد وہ کمپنی کے کام سے جرمنی گیا۔ وہاں اس نے احمد صاحب کو دیکھا، جو کہ پاکستان میں بہت ہی مشہور کمپنی کی CEO کے رائی فرم میں میٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ پھر اس سے پتہ چلا کہ احمد صاحب کی اس کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو دلاور کا بزنس اس کمپنی کی CEO سے بات کر کے شروع کروا سکتا ہے۔ اور اس لیے اس نے احمد صاحب اور پریا کے بارے میں اپنی ماں سے بات کی، اور جب اس نے پریا کی تصویریں دیکھی تو بس دیکھتے ہی رہا۔ جس وقت پریا کی تصویر دیکھ رہا تھا اپنے لیپ ٹاپ میں، وہیں وہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ پریا بہت زیادہ خوبصورت ہے، شاید مجھ سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ، اور مرد تو پھر مرد ہی ہے۔ جس طرح سے اس نے پریا کی تصویر پر ہاتھ پھیرا میرے دل سہم گیا۔ اب وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے اور پریا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے اس کو 2 فائدے ہوں گے، وہ جتنا چاہے امیر ہو سکتا ہے اور پھر اسے اتنی حسین لڑکی اپنا بنا سکتا ہے۔ میں نے اس کے آگے بہت اجتہاد کی، اپنی محبت اپنی اولاد کے واسطے بھی دیے، پر کہیں جا کر اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو چھوڑنے کی بات رد کی۔ اس نے کہا کہ شادی تو وہ ضرور کرے گا، مگر جب تک اس کا دل نہیں بھرے گا وہ پریا کے ساتھ ہی رہے گا۔ جس دن اس کا دل بھر گیا وہ واپس میرے پاس آ جائے گا، مگر میں ایک بھی تو عورت ہوں، میں کسی کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات پاکستان آ کر کسی سے نہیں کہہ سکتی، نہ ہی دلاور کی امی سے۔ دلاور نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے کسی سے کچھ بھی کہا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میرے بیٹے کو بھی چھین لے گا۔ تم جو بھی ہو، اگر تم پریا سے محبت کرتے ہو تو یہ شادی رکھوا دو، اور تمہیں تمہاری محبت کی قسم یہ بات تم کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ ریحان نے سب پڑھ کر شاپ کسی کیفیت میں تھا، پھر آئی پیڈ رکھ کر سب سے پہلے علی کو کال کی اور پریا کی شادی کے متعلق پوچھا۔ وہ خبر صحیح تھی، اس رات کی حالت میں وہ کمرے میں ہی ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پاکیزہ نام کی لڑکی کی آئی چیک کہ وہ دبئی سے تعلق رکھتی تھی۔ ریحان نے دبئی میں موجود اپنے دوست کو کال کی اور دلاور کے متعلق معلومات لینے کو کہا۔ پھر اس نے پریا کو کال کی تو اس سے پتہ چلا کہ پریا کو 2 دن بعد کی شادی ہے، اور فون پریا کی بجائے اس کی کسی کزن نے اٹھایا۔ ریحان نے اپنا سامان لیا اور وہ آئی پیڈ بھی لیا، جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ دلاور شادی شدہ ہے، مگر دلاور کی وائف نے اس کی محبت کی قسم دی تھی اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ ریحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آئی پیڈ بیگ میں ڈالتا وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ ابھی وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہی اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی خیال کے تحت اس نے پریا کو کال کی، جو کہ پریا نے ریسیو کی۔ ریحان نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ریحان نے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی آئی پیڈ سے پریا کی ID کے ذریعے اپنی ID پہ میسج کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ صرف رسک لے رہا تھا، اگر کہیں سے کسی نے اس بات پر غور کر لیا کہ اتنے سارے میسیجز ایک ہی وقت میں کیے گئے ہیں تو اس کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے، مگر اسے یہ رسک لینا تھا اور صرف پریا کے لیے۔ پاکستان پہنچ کر بھی اس نے پریا کو ایک آخری میسج کیا، کوئی شادی نہ کرے، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی دوست نے دلاور کے متعلق معلومات ریحان کو بتائی ہے، جو وہی تھی جو اس پاکیزہ نامی عورت نے بتائی تھی۔ پھر علی سے شادی کی لوکیشن پوچھی اور پہنچ گیا شادی میں۔ علی نے پریا کی شادی میں جانے سے منع کر دیا تھا اور سب کے بار بار پوچھنے پر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، اور اپنے بھائی کی پہلی محبت کو اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پری اس سے بہنوں کی طرح بہت عزیز تھی اور اس کی شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں چاہتا تھا۔ ریحان شادی ہال میں پہنچ کے صرف پریا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ دلہن جوڑے میں کہ ریحان نے بےخود ہوتا کچھ پل ایسے ہی بس دیکھتا گیا، مگر جیسے ہی اس کے نکاح شروع ہوتے دیکھا تو اسٹیج کے سامنے کھڑا ہو کر پھر دل پر پریا سے معافی مانگی، کیونکہ جو کرنے جا رہا تھا اس سے پریا کو بہت تکلیف ہوتی، مگر وہ تکلیف اسے تکلیف سے بہت کم تھی جو اسے دلاور سے شادی کے بعد ملنی تھی۔ پھر اس نے نکاح رکا کر سب کو اس بات کا یقین دلوا دیا کہ واقعی پریا اور ریحان کے بیچ تعلقات تھے۔ شاید ریحان کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ وہ سب میسیجز محض ایک رات ہی میں کیے گئے ہوتے۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وہ سب اسی کے سوچے مطابق ہی ہوا۔ پریا کی نفرت کو محسوس کر رہا تھا، مگر کہہ کچھ نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ اپنی محبت کا احساس دلائے۔ پھر علی کے کہنے پر پریا نے اپنے بابا کی مرضی کے بغیر ہی ریحان سے شادی کی اور اس کے گھر آ گئی۔ ریحان کو احساس ہو گیا کہ آگے کی اس کی زندگی بہت مشکل راستوں سے گزرے گی، مگر اسے صبر کرنا تھا، کیونکہ اس کی پری ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہو گئی تھی۔
प्रिया को वहां स्टडी में बैठे 1 घंटे गुजर गया था। रेहान की आवाज और चूंकि शायद वो यूनी से वापस आ गया था और परी को ढूंढते हुए इसके देखने अपने बेडरूम में गया। प्रिया भागने के अंदाज में बेडरूम के दरवाजे खोले रेहान को देख रही थी। जानम कहाँ थी? मैं कब से आवाजें दे रहा था। रेहान से मोहब्बत भरी नजर से देख रहा था। पर यह बगैर कोई जवाब तेजी से रेहान की तरफ बढ़ी, उसके सीने में सर रख दिया। प्रिया को यूं अपने पास देखकर रेहान मुस्कुराने लगा। जानब इतना मिस कर रही थी मुझे? अभी 2 घंटे पहले ही तो गया हूँ मैं। रेहान ने मजाक में प्रिया को कहकर इसका चेहरा ऊपर किया तो देखा प्रिया की चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। अब रेहान को प्रिया की फिक्र हुई। परी जानम क्या हुआ? रेहान ने परी को कंधा से थाम कर कहा। शर्मिंदगी और नादामत की वजह से प्रिया के मुंह से असल बात ना निकली। कुछ नहीं, बस डर गई थी। प्रिया के बहाने पर रेहान ने इसे गौर से देखा। जानम इतने सर्वेंट हैं घर में, तुम डर क्यों? सब थे, तुम नहीं थे। प्रिया ने आंसू में भीगी नीली आंखों से रेहान को देखा। रेहान को लगा वो शिकायत कर रही है इसे अकेला छोड़कर जाने की। परी के अल्फाज से रेहान के दिल को कुछ हुआ और इसने बगैर कुछ किए ही प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। सॉरी, तुम्हें अंदर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। रेहान की माफी सुनकर प्रिया की आंसू में मजीद पानी आ गई, जो बगैर किसी आवाज के पास बहाई जा रही थी। अब इसे तकलीफ का एहसास हुआ जिसे वो कई दिनों से महसूस कर रही थी, और वह तकलीफ किसी बेगुनाह नफरत की तकलीफ थी, जिसकी सच्ची मोहब्बत मुंह मोड़े लेने की तकलीफ थी। प्रिया जानम कहाँ हो यार? रेहान घर में आते ही प्रिया को जोर जोर से आवाजें देने लगा। प्रिया किचन में मेड के साथ खाना बनाने में मसरूफ थी। रेहान की आवाज़ों पर इसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान आ गई। मेड जो इतने दिनों में पहली बार प्रिया को मुस्कुराता देख रही थी, प्रिया को देखती रही। प्रिया को बता रेहान जब तक प्रिया को ढूंढ नहीं लेता वो आवाजें लगाता रहेगा। पहले प्रिया को रेहान की इस हरकत पर कोफ्त होती थी, मगर जब से इसे ये एहसास हुआ कि रेहान की मोहब्बत वाकई बेलौस है तो इस अब रेहान की हर हरकत पर प्यार आता था, जबकि पिछले दिनों में इसे ये सब बनावटी लगता था। प्रिया की नजर जैसे ही मेट पर गई, जो एकटक इसे ही देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? प्रिया ने मेट से सवाल किया। कुछ नहीं हुआ, आपको आज पहली बार मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही हो। प्रिया अभी इसकी बात का जवाब दे दी जब रेहान प्रिया को ढूंढता हुआ किचन में चला आया। तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ तुम्हें। प्रिया ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ कंधे चला दिए। कोई काम था? प्रिया बहुत मुश्किल से अपने अंदाज को नॉर्मल किए हुए थी और रेहान को परेशान कर रही थी, और रेहान वाकई परेशान हो रहा था। क्या है ये लड़की, कभी इतनी मोहब्बत जताती है तो कभी ऐसे हो जाती है जैसे जानती ही ना हो। रेहान ने ये सब दिल में ही सोचा। कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। रेहान ने भी इसकी संजीदगी से कहा और किचन से निकलता चली गया। प्रिया मेड को बाकी काम समझाकर खुद भी ऊपर कमरे में चली आई। कमरे में रेहान बेड पर बैठा खुद को मोबाइल में मसरूफ दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रेहान के ये अंदाज आज पहली बार प्रिया को देख रही थी। रेहान प्रिया से कभी नाराज नहीं हुआ था, मगर आज क्यों? प्रिया भी खामोशी से रेहान के बराबर में बैठ की। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझे क्यों बुलाया? प्रिया ने ही बात का आगाज किया। सवाल के जवाब में रेहान ने बस एक शफा भरी नजर प्रिया को देखा। रेहान का अनूठापन देखकर प्रिया को अब कह रोकना मुश्किल हो गया। रेहान जो प्रिया से नाराज होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जो कि इससे हो नहीं पा रहा था, अब प्रिया को यूं खोल के कह लगाता देखा, बस देखते ही रहा। आज लंदन में मौजूद इस सिकंदर हाउस में पहली बार प्रिया रेहान सिकंदर की आवाज गूंजी थी, वरना आज तक रेहान ने इसे सिर्फ हल्के से मुस्कुराते हुए देखा था। प्रिया कमरे में टहलते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। रेहान भी उठकर इसके पास गया और इसका हाथ थामकर इसके चेहरे के नगोश को दूसरे हाथ से छूने लगा। इतने हंसने की वजह से प्रिया की सफेद रंगत सुर्खी दर आई थी, जबकि नीली आंखों में हल्की सी नीमी भी आ गई थी। रेहान की कुर्बत पर प्रिया की हंसी कहीं दूर जा सोई, जबकि रेहान इस खूबसूरती देख बस निहाल हो रहा था। वह एक वादा करोगी मुझसे? थोड़ी देर बाद रेहान ने प्रिया से कहा। कहो। प्रिया ने फौरन ही जवाब दिया। हमेशा ऐसे ही खुश रहोगी ना मेरे साथ? रेहान की बात पर प्रिया हैरत से रेहान को देखने। क्या था ये शख्स? हर दर्जा मोहब्बत करने वाला, अपने हर रिश्ते को मान देने वाला, अपनी माँ भाई बेबी का फख्र और सबसे बढ़कर बेइंतहा मोहब्बत करने वाला शोर। रेहान प्रिया की जवाब के इंतजार में था, जबकि प्रिया रेहान को तकने में मसरूफ थी। तुम देखोगी तो प्यार हो जाएगा मुझसे? रेहान ने प्रिया के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, तो प्रिया के चेहरे पर मुस्कान दर आई। प्रिया के चेहरे पर हया की लाली बिखरता देख रेहान को यकीन हो गया कि अली ने इसे जो समझाया था वो सब सच था। कहा कि 2 बोल में इतनी ताकत होती है कि 2 दिनों में मोहब्बत हो ही जाती है। प्रिया का रोम रोम रेहान को ये गवाही दे रहा था कि इसके दिल में रेहान की मोहब्बत ने अपनी जगह बनाई है, मगर अल्फाज में अभी भी वो कह नहीं पा रही थी। जबकि रेहान की यही ख्वाहिश थी कि प्रिया इसे दिल से चाहे, मगर दिल अब भी ख्वाहिश कर रहा था कि प्रिया अपने लफ्ज़ों से ही इज़हार मोहब्बत करे। रेहान ने प्रिया के माथे पर मोहब्बत की मेहर साबित की तो प्रिया ने पहली बार वो प्यार भरा लम्स दिल से महसूस किया। अपने दिल की आवाज़ को दबते हुए प्रिया ने खुद को रेहान से थोड़ा दूर की सवाल किया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था जबकि मुझे बहुत से काम है? प्रिया के लहजे में लड़खड़ाहट वाजिया थी, जिसे रेहान ने महसूस कर लिया था। मेरा रिजल्ट आ गया है, रेहान ने आम से अंदाज में जवाब दिया। क्या वाकई सच में? कैसा रिजल्ट आया तुम्हारा?
प्रिया जो जोश पर जोश होकर रियान से पूछने गई, सेकंड पोजीशन आई है मेरी। रियान ने अभी वही अंदाजा बनाते होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया को रियान का अंदाजा थोड़ा अजीब लगा। इसमें अच्छी क्या बात है? रियान ने अब के प्रिया से ही सवाल किया। मुझे तो लगता था कि तुम मुश्किल से ही पास होते होंगे, मगर जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी है, सेकंड पोजीशन भी आना बहुत बड़ी बात है। प्रिया जैसे रिजल्ट को समझती थी, इसे बगैर किसी भीड़ के कह दिया, जबकि वो जानती थी कि रेहान हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था, और ये सब इसे मनाल के जरिए पता चला था। जबकि रेहान के तो होश ही उड़ गई प्रिया की नज़र में खुद को नालायक जानकर। सोना मिसेज में अपनी पूरी लाइफ में हर चीज़ में अव्वल आया हो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट हो या लाइफ हो। रेहान के तेवर बदलते देखकर प्रिया को अब मज़ा आने लगा इसे तंग करने में। अच्छा, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। मेरी हरकतें में मत जाओ, मेरा एक एकेडमी रिकॉर्ड देखोगी तो ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। रेहान को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था खुद को नालायक समझना। तो फिर सेकंड कैसे आ गए? प्रिया ने अब के रेहान के चढ़ने की ही जान ली, जबकि रेहान के रिजल्ट पर वो बहुत खुश थी। सुनो मिसेस, पिछले महीने में इतना कुछ हुआ कि मैं पढ़ाई पर तवज्जो ही नहीं दे पाया, और तो वो तो भाई ने मुझे एक माह पहले ही भेज दिया एग्जाम से, वरना तो मैं एग्जाम देने के ही राजी नहीं था। रेहान ये सब कहना नहीं चाहता था, मगर चिड़चिड़ापन में कह गया। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा नहीं रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों एक दूसरे के करीब अल्फाज नहीं निकाल पा रहे थे और अब बाकायदा एक दूसरे से बहस कर रहे थे। हाँ, तो किसने कहा था पढ़ाई छोड़कर मेरे पीछे आओ? करते रहते पढ़ाई, हो जाने देते मेरी शादी, क्यों किया ये सब कुछ? प्रिया की इस बात पर रेहान ने इसकी बाजू से थाम कर कहा, सेकंड आने पर देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, और अगर मैं इस साल एग्जाम ना देता तो अगले साल दे देता, ये इतनी बड़ी बात नहीं। जबकि अगर तुम्हारी शादी सदावर से हो जाती तो मैं एग्जाम देने के तो क्या शायद जीने के काबिल भी नहीं रहता। रेहान की संजीदगी सूरत देखकर प्रिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। जबकि रेहान ने प्रिया का चेहरा देखा तो पल में ही इसके चेहरे के तासरात बदले। प्रिया आंखों में आंसू लिए हुए थे और रेहान प्रिया की आंखों में आंसू देखकर ही संभल गया था। प्रिया को अपने बाजू में भरकर रेहान ने अपनी आंखें मूंद ली। एक बार फिर दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को महसूस करने लगे। अली को जब पता चला कि रेहान के रिजल्ट के बारे में तो इसने सबको खुशखबरी सुनाई। अली बहुत परेशान था रेहान के लिए, क्योंकि पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ इसे रेहान को पढ़ाई पर फोकस करना कितना मुश्किल था ये अली समझ सकता था। मनाल, मेहताब बेगम और अहमद साहब भी रेहान के लिए खुश थे। अब जल्दी प्रिया और रेहान वापस आ जाएंगे। दोनों का रिश्ता भी काफी मजबूत हो गया था और अब रेहान भी अली की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो गया था। सब घर वालों ने रेहान और प्रिया से बात की और रेहान को मुबारकबाद दी। मिनाल अपने कमरे में मौजूद किताब पढ़ रही थी। इसी वक्त प्रिया की कॉल आने के लगी मिनाल के मोबाइल पर। मिनाल को हैरत हुई कि अभी कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी प्रिया की सबसे, फिर दोबारा कॉल रिसीव की तो प्रिया ने मिनाल से इस्लाम के बाद अपने दिल की बात की। प्रिया की बातें सुनकर मिनाल ने प्रिया को मशवरा दिया जो प्रिया को बहुत पसंद आया। मिनाल ने मशवरा करने के बाद प्रिया ने रेहान को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। वो अच्छे से समझती थी कि रेहान चाहता है कि वो इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। प्रिया ने रेहान को कॉल की तो इसकी कॉल ही काट दी। प्रिया को हैरत हुई क्योंकि रेहान ने कभी प्रिया की कॉल नहीं काटी थी और आज सुबह से ही वो घर से बाहर था। प्रिया ने इसे कॉल में मैसेज किया तो रेहान को जवाब अगले 5 मिनट में आ गया। प्रिया को अब तो जश्न हुआ रेहान इसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा, मगर मैसेज का जवाब फौरन दे रहा है। प्रिया ने मैसेज खोल कर देखा तो रेहान का मैसेज था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। प्रिया ने न चाहते हुए भी एक बार फिर कॉल की, मगर रेहान ने रिसीव नहीं की। 1-2 बार 3 बार ना जाने कितनी बार प्रिया ने रेहान को वक्फे से कॉल की, मगर रेहान ने किसी भी कॉल को रिसीव नहीं किया। करीब 1 घंटे बाद रेहान के दोस्त सफियान के नंबर से प्रिया को मैसेज आया। लंदन आने के बाद प्रिया ने सफियान से भी हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी थी, क्योंकि रेहान की बीवी होने के नाते सफियान के लहजे में एहतराम आ गया था प्रिया के लिए, जिसे देखकर प्रिया ने सफियान से चिढ़ना छोड़ दिया था। सफियान के मैसेज में किसी रेस्टोरेंट और टाइम लिखा हुआ था और साथ में लिखा था, भाभी आप आज इस टाइम पर इस जगह आइएगा, रेहान आपका इंतजार करेगा। रेहान को डॉक्टर में सफियान प्रिया को भाभी कहता था। प्रिया शदीद हैरान हुई, ये सब क्या हो रहा है? रात के 12 बजे रेहान मुझसे घर के बाहर मिलना चाहते हैं। क्वेश्चन पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करके प्रिया अपनी सोचों में गुम थी कि रात के 12 बजे ही क्यों। अचानक प्रिया की नजर कमरे में लगे कैलेंडर पर गई तो प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल प्रिया का बर्थडे था, शायद इसलिए रेहान ने इसे 12 बजे पहुंचने का कहा है। शायद वो इसे सरप्राइज देना चाहता है, मगर शायद रेहान सिकंदर ये नहीं जानता था कि इसकी शादी एक इंतहाई मजबूत यादाश्त वाली लड़की से हुई है। वो भी कभी कुछ नहीं बोलती। प्रिया ये सोच कर ही हंसी रही थी कि रेहान को जब पता लगेगा कि वो इससे सरप्राइज के बारे में जानती है तो कैसा रिएक्शन होगा। रेहान के बारे में सोचती प्रिया ने उल्टा रेहान को ये सरप्राइज देने का सोचा और आज इसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने का फैसला किया। अब प्रिया को बस आज रात का इंतजार था। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही रेहान घर से बाहर आ गया, प्रिया को कुछ भी बताए बगैर। कुछ दिनों में ही बागस्वाद जाना था, इसलिए रेहान प्रिया के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। कल प्रिया का बर्थडे था, इसलिए रेहान ने लंदन में मौजूद एक रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पर आज के लिए बुक किया था। उसकी सजावट अपनी निगरानी में करवा रहा था और सफियान काम करवाने वालों
करवाने में और अपनी बातों में मसरूफ था जब रिया की कॉल आई थी। रेहान कॉल रिसीव करने ही वाला था जब सुफियान ने रेहान को हाथ से मोबाइल लेकर काट दी। ये क्या किया तुमने, कॉल क्यों काटी? रेहान को सुफियान की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इतने पर प्रिया का मैसेज है जिसमें लिखा था कॉल मी। रेहान को कॉल मिलाता देखकर सुफियान ने रोका। मेरे भाई थोड़ा सब्र कर जा। वो क्यों? सुफियान की बात पर रेहान ने सर किया। देख भाभी जितना तजस्सुस में बढ़ेगी इतना ही ने अपना सरप्राइज देखकर खुशी होगी। ये क्या बकवास है, वो परेशान भी तो हो सकती है। रेहान ने सुफियान को छड़का। तो बस भाभी को मैसेज करके मैं बिजी हूँ और अगर तूने नहीं किया तो मैं भाभी को आज के सरप्राइज के बारे में सब बता दूंगा। रेहान ने चाहते हुए प्रिया को मैसेज किया, मोबाइल जेब में डाल लिया। अगले 1 घंटे तक मोबाइल वक्फे वक्फे से बज रहा था जैसे सुफियान की मौजूदगी में रेहान चाहते हुए प्रिया से बात नहीं कर पा रहा था। अपनी तमाम तरह आही नजर डालकर रेहान ने जैसे प्रिया को कॉल मिलाने के मोबाइल जेब से निकाला, सुफियान ने से एक बार फिर टोक दिया। तू रेहान सिकंदर है ना? रेहान ने सुफियान को हंसते हुए देखा। हाँ क्यों, क्या हुआ? देख मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता और ये भी जानता हूँ कि तुझे जिंदगी में पहली बार सच्ची मोहब्बत हुई है, मगर मेरे यार तजर्बा भी किसी चिड़िया का नाम है। सुफियान की बातों को मतलब ना समझकर रेहान ने सवाली नजरों से उसे देखा। मेरा यार गया काम से, सुफियान ने अपने बालों में हाथ फेर कर कहा और रेहान को बस खामोश रहने का इशारा किया। बहुत प्रिया को मैसेज किया। रेहान की नजरों के मतलब समझकर अब सुफियान के लिए सांस लेकर रेहान को तफसीली तौर पर समझाया। सुफियान की बातों को मतलब समझकर रेहान मुतमईन हो गई जबकि सुफियान बुलंद आवाज में शेर पड़ा, इश्क के नकम्मे बना दिया गालब, वरना बंदे तुम भी काम के थे। सुफियान के शेर पर दोनों दोस्तों का केक फिजा में गुंजा। प्रिया तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने अपनी तैयारी का आखिरी बार देख रही थी। जो ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी जिसका ब्लाउज को गोल्डन में कॉम्बिनेशन था, सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। अपनी रोजमर्रा की आदत से हटकर आज प्रिया ने हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था। खुद को आईने में देख रहा प्रिया खुद हैरान थी। एक अलग ही नूर इसके चेहरे पर आ गया था जिसे वो कुछ वक्त से खुद पर महसूस कर रही थी मगर कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज खुद को इतना गौर से देखने पर इसे एहसास हुआ वो पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। इसकी आंखें ऐसी लगी जैसे न जाने कितनी थकन इसमें समाई हो, जिस पर रेहान बहुत फिक्र रहने लगी थी। मगर प्रिया की प्रिया पर इसका ख्याल समझ कर टालती रही, मगर आज इन्हीं आंखों में एक अलग ही चमक वो महसूस कर रही थी। इन दिनों में कितना कुछ बदल गया। कब प्रिया के दिल में रेहान की मोहब्बत जगमगाई से एहसास न हो और अब वो पूरे दिल से इस मोहब्बत को कबूल करना चाहती थी। रेहान प्रिया के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि घर से 11 बजे निकली और अब 12 बज चुके थे मगर वो अभी तक नहीं पहुंची थी। रेहान प्रिया के इंतजार में था कि रेस्टोरेंट के दाहिने दरवाजे पर अलीज़ा अंदर आती ही दिखाई दी। कैसे हो रेहान? अलीज़ा ने शादगी से रेहान को मुखातिब किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीज़ा की बात पर जवाब में रेहान ने बहुत रुख ली। का फिक्र मत करो, तुम्हें तंग करने नहीं आई। ये रिजवान मेरे हस्बैंड का है, इन्हीं ने मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। थोड़ी देर पहले सोचा तुमसे मिल लूं। खैर अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा ना लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। अलीज़ा के जवाब पर रेहान को अपने लहजा थोड़ी शर्मिंदगी हुई। जो कुछ अलीज़ा ने प्रिया के साथ किया वो रेहान चाह कर भी नहीं बुरा पड़ा था, इसलिए अलीज़ा की 1000 बार माफ़ी मांगने पर भी इसने कभी माफ़ नहीं किया था। मगर इसकी शादी हो चुकी थी जो उसका रेहान का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ लीज़ा, परी किसी भी वक्त यहाँ आती होगी, रेहान ने अब धीमे लहजे में लीज़ा से कहा। अलीज़ा मुस्कुराकर रेहान के गले लगी और अलविदाई कलमात करने लगी। तुम्हें प्रिया के साथ देखकर खुशी हुई और सच कहो तो मैं ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे भी एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अलीज़ा की बात पर रेहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेहान ने इसे खुद से दूर किया और इसे अब किसी गैर लड़की के गले लगना बहुत बुरा लगा, जबकि अलीज़ा के लिए ये बहुत मामूली बात थी। लंदन जैसे शहर में दोस्त भी रस्मी गले लगकर ही एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसे ही रेहान की नजर दरवाजे पे गई वहां पर प्रिया को देखकर रेहान की होश ही उड़ गई। ब्लैक साड़ी में वो हद से ज्यादा हसीन लग रही थी, मगर जैसे इसकी नजर प्रिया के नजरों से पहले पलटना ही भूल गई। कुछ था प्रिया की नजर में जैसे रेहान को इनाम नहीं दे रहा था, शिकवा, शिकायत, नाराजगी, गुस्सा या फिर बेतबारी। रेहान को कुछ समझ न आया। अलीज़ा वहां से कब की रेहान को एहसास न हुआ। जो इसे एहसास हुआ वो ये था कि प्रिया रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ भागी थी। रेहान भी इसके पीछे भागा, मगर थोड़ी दूर जाकर ही वो मंजर रेहान ने देखा। इसे देखना रेहान को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। 11 बजे के करीब प्रिया घर से निकली तो उसने रेहान को मैसेज करके अपना आने का बताया, मगर जैसे ही वो घर से निकलने लगी चक्कर कर वहाँ गिर गई। अब इसे अपना सर बहुत भारी होता महसूस हुआ। शुक्र एक मेड ने इसे देखा और इसे लेकर रूम में गई और डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। जब रेहान को कॉल करने से प्रिया ने मना कर दिया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ गई। इसने प्रिया का चेकअप किया। फिक्र की कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशन में कमजोरी हो जाती है। कैसी कंडीशन में समझी नहीं? प्रिया ने डॉक्टर से सवाल किया। मतलब कि प्रेगनेंसी में कमजोरी होना आम सी बात है, बस अपने खाने पीने के हर करें, शायद अपने खाने नहीं खाए इसलिए बीपी काफ़ी लो हो गया है। आप जूस लीजिए और फल खाएं और जल्द से जल्द अपना टेस्ट करवाएं ताकि पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा स्टेज है। इसके मुताबिक आपको मेडिसिन लेनी होगी। डॉक्टर अपनी बात बकर जा चुकी थी और प्रिया वहीं होंकों की तरह बैठी रही। मेड ने इसे मुबारकबाद दी तो वो खुश की दुनिया में वापस आई। टाइम देखा तो 11:15 हो रहे थे। इसे जल्द रेहान के पास पहुंचना था, इसे ये खुशखबरी सुनानी थी।
रेस्टोरेंट से निकलकर प्रिया भागने के अंदाज में चली जा रही थी जब इसे पीछे से रेहान के चलाने की आवाज आई। जैसे ही इसने मुड़कर देखा, एक कार तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही थी। रेहान दौड़कर दूसरी तरफ गया। जैसे ही गाड़ी प्रिया की तरफ बढ़ी, किसी ने इसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। तेजी से गिरने के बाद प्रिया बेहोश हो गई। जब प्रिया को सही सलामत देखकर रेहान ने सुख कर सांस लिया। प्रिया को वहां देखकर लीजे ने वहां से जाना बेहतर समझा। ना तो रेहान ने और ना ही प्रिया ने इसे जाते हुए महसूस किया। वो तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। मगर जैसे ही एलिजा रेस्टोरेंट से बाहर आई, चंद पल बाद ही प्रिया को भी भागने से अंदाज में बाहर आई और दो रोड की तरफ चल दी। एलिजा को अपने हवासों में नहीं लग रही थी। बगैर सोचे समझे एलिजा ने भी इसके पीछे कदम बढ़ा दिए। फिर जैसे ही एलिजा ने प्रिया की तरफ आती कार को देखा, इसने अपनी पूरी कुवत से प्रिया को रोड से फुटपाथ की तरफ खींचा। फुटपाथ करने की वजह से प्रिया बेहोश हो गई थी। वो तो शुक्र था कि कोई चोट नहीं आई थी। रेहान भी दौड़ता हुआ वहां आया और प्रिया को बेहोश देखकर इसे उठाकर अपने रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक ले गया, जबकि एलिजा भी रेहान के साथ ही मौजूद थी। रेहान प्रिया को पास के ही हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने इसके चेकअप किया तो बताया कोई जख्म नहीं है, शायद डर की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर प्रिया को सुकून का इंजेक्शन देकर चला गया। तुम्हारा मैं शुक्र अदा कैसे करूं लेता, तुम आज परी की जान बचाई। मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। रेहान हद से ज्यादा मशहूर था रीजे का। अगर वो वक्त पर प्रिया को न बचाती, इससे आगे रेहान को ऐसा लगा कि अगर सोचेगा तो सांस भी नहीं ले पाएगा। ऐसे मत कहो रेहान, शायद मेरी ही वजह से ये सब हुआ। ना मैं तुमसे मिलने आती ये सब होता। रीजा थोड़ा शर्मिंदा थी क्योंकि ये सब सच था। प्रिया से और रेहान को एक दूसरे के करीब देखकर ही तो की थी। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया तो इस एहसान के बदले मुझे माफ कर दो। इस वक्त के लिए जिस वक्त मैंने प्रिया को तुमसे दूर करना चाहा। रेहान ने कुछ वक्त सोचा, फिर रिजी की तरफ देखकर कहा, ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। रेहान की बात पर रिजी ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा और बगैर कुछ के ही हॉस्पिटल से चली गई। प्रिया को डॉक्टर ने अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया और आज इसे घर आए 2 दिन हो गए थे, मगर इन 2 दिनों में रेहान ने इसकी बिल्कुल भी बात नहीं की। वो इसकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा था मगर इससे बात नहीं कर रहा था। यही प्रिया भी रेहान से ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि एक बार फिर इसने रेहान को गलत समझा। रीजा ने इसे बता दिया था कि वो रेस्टोरेंट क्यों आई थी और बाकी पिछली बातों के लिए भी इसने प्रिया से माफी भी मांगी थी। इस तरह रेहान का डॉक्टर से मिलने गया। प्रिया को रेहान का इतना आदत हो गई थी कि अब इसकी खामोशी से इसे बहुत बेचैन कर रही थी। अभी भी रेहान अपने लैपटॉप में मसरूफ था, प्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज किए हुए, और वो ये सब कैसे कर रहा था ये वही जानता था। एक पल में कितनी बार मरा था वो तो वही जानता था। पर जब प्रिया की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी इसकी नजरों से गई और इससे पहले कि प्रिया की नजरों में इसने जो कुछ भी देखा था वो अब नाकाबिले बर्दाश्त था। रेहान अब प्रिया को अपनी गलती का एहसास दिलाकर रहेगा क्योंकि वो हमेशा ऐसे गलत समझती। आखिर वो भी तो इंसान था, इसे भी तो बुरा लगता था। बेगुनाह होकर भी सामने वाले की नज़र में खुद को गुनहगार देखने से तकलीफ देता था। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? 3 दिन तक जब रेहान ने प्रिया से बात ना की, तंग आकर प्रिया ने ही बात का आगाज किया। प्रिया के सवाल पर रेहान ने बगैर इसकी तरफ देखे जवाब दिया, तुम्हें मेरी या मेरी बातों की क्या जरूरत भला? मतलब तुम्हारा? प्रिया को रेहान की बात समझ ना आई। तुम्हें जो मतलब ठीक लगे वही समझ सकती हो, मगर अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। रेहान ये बोलकर रूम से बाहर जाने में प्रिया ने इसके हाथ थाम लिया। मत करो इसे प्लीज। प्रिया ने प्यार से रेहान का हाथ दोनों हाथों में थाम कर कहा, क्यों ना करूं, मैं लगता है मैं कौन हूँ तुम्हारे? रेहान चेहरे पर बगैर किसी इजाजत लिए अपनी बात कर रहा था। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। प्रिया का ये बोलना था कि रेहान आपकी बात फूट पड़ा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी गलती नहीं मिसल प्रिया। रेहान से अंदर तुम्हारी नहीं नहीं मेरी है। मेरी ही तो गलती है जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी ही तो गलती है जो तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ। ये मेरी ही तो गलती है जो कुछ किया आज तक तुम्हारे लिए किया और हमेशा तुम्हारी ही नज़र में बुरा बना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। ये भी मेरी ही गलती है। तुम्हारा क्या है, जब जो दिल करता है बोल देती हो, जब दिल करते है मुझे अपने अल्फाज से तकलीफ देती है। तुम्हारा क्या चाहते हैं? तुम तो डरी दौड़ी जा रही थी दौड़ पर। तुम्हें थोड़ी भी एहसास है मेरा? क्या तुम्हें कुछ देख कर की गुजरी थी मुझ पर? इस गाड़ी को तुम्हारी तरफ आते देख कैसा लगा था मुझे? चंद सेकंड की बात थी, सिर्फ चंद सेकंड की, मगर इन चंद सेकंड में मैं 1000 बार मर चुका था। सोच लिया तुम्हें कुछ हुआ तो अगली सांस में भी नहीं लूंगा। रेहान बकायदा से कंधे से थामे से छोड़ने के अंदाज में बोल रहा था और प्रिया खामोशी से बस से देख रही थी। मैंने कभी तुम्हारे मुंह से मोहब्बत के 2 बोल नहीं सुने, फिर भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत की। तुमसे चाहता ही क्या हूँ मैं? बोलो सिर्फ इतना कि जैसे मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखूं, तुम्हारे अल्फाज से भी मैं मोहब्बत भरे अल्फाज सुनूं, वो भी सिर्फ एक बार। इससे ज्यादा तो कभी ख्वाहिश भी नहीं की मैंने। मानता हूँ, कबूल भी कर चुका हूँ कि अच्छा इंसान नहीं हूँ मैं। लड़कियों का टाइम पास समझता था मैं, तुम्हें भी सिर्फ एक चैलेंज ही समझता था मैंने, मगर अपने किए कि हर बार माफी मांगी मैंने। और क्या करूं बताओ? चाहती क्या हो तुम? जान दे दूं अपनी, तब तो मैं यकीन आएगा कि सच्ची मोहब्बत करता हूं तुमसे। प्रिया ने तड़प कर रेहान के सीने पर सड़क दिया और रेहान की बातों को सुनना नहीं चाहती थी। दिल ही दिल में अपने आप को बड़ा बुला कह रही थी, जो कि इतना प्यार करने वाले शख्स को कभी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो रेहान, मैं नहीं जानती तुम्हें अलीजे के इतने पास देखकर मुझे क्या हो गया था। मैं इतनी खुश थी, तुमसे मिलने चाहती थी, तुमको बताना चाहती थी। हाँ मैं प्रिया, रेहान सिकंदर
तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहने लगी हूँ, तुम्हें अपना सब कुछ मानने लगी हूँ। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हारे सीने पर सर रख कर तुम्हें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुई खबरी सुनाना चाहती थी, मगर तुम अलीज़े के साथ देखकर मुझे ऐसा लगा वाक़ई मुझे खुशियाँ रास नहीं है। मुझे जब जब कोई खुशी मिली है, इसके साथ मुझे हमेशा एक बहुत लंबे अरसे का रोग भी मिला है। इस रात भी मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी, इसलिए मैं वहाँ से भागी, क्योंकि मैं कोई लंबे अरसे का रोग नहीं अपनाना चाहती थी। इस रात मैंने तुमसे नहीं, खुद से दूर भाग रही थी। प्रिया बोल रही थी और रेहान से सुनना चाहता था। वो पहली बार अपना आप रेहान पर जाहिर कर रही थी, अपने दिल की बात इससे कर रही थी। रेहान महसूस कर रहा था, बोलते हुए डर से कँपा रही थी, मगर रेहान को इतना मजबूती से थामे हुई थी कि कहीं अगर इसने इसे छोड़ा तो वो इसे छोड़कर चला जाएगा। रेहान इसलिए बेड पर गया, आराम से इसे खुद से दूर किया, पानी पिलाया और फिर से इसके साथ बैठ के इसका हाथ थाम कर बैठ गया। प्रिया ने अब इसके सुकून से रेहान के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। तो क्या तुम मुझे माफ कर देना ना? अब की बार प्रिया ने एहतजाजी अंदाज में ध्यान से कहा, तो रेहान जहरीला मुस्कुरा दिया। नाराज नहीं था मैं, बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि अब तुम गलत हो, और ये भी देखना चाहता था कि मेरी नाराजगी से तुम्हें कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं। तो तुमने बगैर किसी नाराजगी के ही मुझे 3 दिन तक तंग किया, जानबूझ के मुझसे बात नहीं की, मुझे इग्नोर किया। प्रिया ने हैरत से रेहान की तरफ देख कहा, हाँ तो अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम्हारे मुंह से इज़हार मोहब्बत के लिए मुझे सारी जिंदगी इंतजार करना पड़ता। रेहान ने प्रिया के गिर्द अपना सहारा बांधकर उसके करीब किया। वैसे अब क्या कह रही थी तुम? कि मुझे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती थी। छोड़ो मुझे, तुमने जानबूझ के मुझे तंग किया। जाओ, हम दोनों तुमसे नाराज हैं। प्रिया को रूठे लहजे में रेहान का, क्या कहा तुमने? हम दोनों, दूसरा कौन है भला? रेहान ने सवाली नजरों से प्रिया को देखा। रेहान के सवाल पर प्रिया गड़बड़ा गई। जो बात बताने के लिए वो एक एक इंतजार कर रही थी, अब रेहान को कुछ ना बता ही पा रही थी। वो तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? हचकिचाती में प्रिया के मुंह से जो आया वो बोल गई। जब वो जानती कि रेहान का बच्चन से बहुत प्यार है, नाइल और माहिम से बहुत प्यार करता है। प्रिया का सुर पड़ता चेहरा और उसकी बच्चों के सवाल ने रेहान को बहुत कुछ समझा दिया था, और ये भी कि प्रिया किस खुशखबरी की बात कर रही थी और वो दूसरा कौन है जो रेहान से नाराज है। मुस्कुराते हुए प्रिया को फिर से अपने करीब करके रेहान ने इसकी कान में कहा, मुझे बच्चे बहुत पसंद हो। ये बताओ तुम दोनों को मनाना कैसा है? रेहान की बात सुनकर प्रिया ने अब के प्यार से रेहान के सीने में मुंह छुपा लिया। तुम खुश हो? प्रिया के अल्फाज रेहान को बहुत धीमे में सुनाई दिए। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिससे मोहब्बत और इसकी औलाद की खुशी एक साथ मिली होगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए प्रिया की परेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबद की, जबकि प्रिया ने प्यार भरे इस लम्हे सुकून से अपनी आंखें मूंदी। रेहान प्रिया को लेकर पाकिस्तान वापस आ गया था, और यह वक्त वो अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहता था, और प्रिया को भी सबके साथ रहने की ज़रूरत थी। सभी लोग प्रिया और रेहान के लिए बहुत खुश थे। प्रिया ने रेहान को यह बात अब तक नहीं बताई थी। वो जानती है कि दिलावर की बीवी ने रेहान से शादी रोकने का कहा था और इसे किसी से कुछ भी कहने से मना किया था। अगर रेहान ने इसे ना बताना ज़रूरी समझा तो वो भी कभी इसे ये बात नहीं बताएगी। क्या सोच रही हो? रेहान ने प्रिया को यूँ सोचा, मैं गुम देखा तो पूछ भी ना रह सका। कुछ नहीं, बस समुद्र को देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है सब कुछ। वो दोनों इस वक्त समुद्र के किनारे पर मौजूद थे। रेहान प्रिया का हाथ थामे इस पानी के करीब ले गया। पानी की ठंडक महसूस करके प्रिया ने मुस्कुराकर रेहान को देखा, तो इसे ही देखने में मसरूफ था। शुक्रिया। प्रिया ने रेहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, वो किस लिए? रेहान ने प्रिया की सवाली नज़र से कहा, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए। आज आप मेरे एक बार बुलाने पर ही अपना सारा काम छोड़कर चले आए। रेहान ने प्रिया को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। बड़ी बड़ी जसामत में वो रेहान को पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। नीली आंखें हम हमेशा मुस्कुराती रहती, तो ये सब रेहान की ही मोहब्बत का नतीजा था। बहुत जल्द वो दोनों 2 से 3 होने वाले थे, और रेहान प्रिया का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता था। इसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था और इसकी हर ख्वाहिश को भी दिल व जान से पूरी करता था। एक बात पूछूं? आपकी बात? रेहान ने किया। हाँ बोलो। क्या आप कभी कहोगी कि नफरत है मुझे तुमसे? रेहान के सवाल पर प्रिया ने नफी में सर हिलाया। कभी नहीं, बल्कि मैं तो चिल्ला चिल्ला के भी कह सकती हूँ कि रेहान सिकंदर, मुझे मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे। कैसा लगा आपको हमारा ये वाला नावल? यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो इंतज़ार करें हमारे अगले चटपटे और चटखारेदार नावल का। अल्लाह हाफ़िज़।